Sorry for the delay, guys. Actually, network issue was there, so that's why I wasn't able to continue on my time. नहीं चला मेरा पर्सनल तो नहीं कनेक्ट हो गया कुछ तो कनेक्ट हुआ है वाईफाई में कुछ दिखाई नहीं रहा खाली दिखा रहा है यहाँ पे कुछ चीज ही नहीं दिखा हाँ Please convey to your friends to join within by 11:30. I'll be taking the attendance at 11:30. Okay, sir. I would have died if I had four. There are 29 students, including me, 29 candidates. Should I start the attendance? Okay, I'm going to start the attendance. Please आप अपना mic on करके अपनी present बोल दीजिएगा. Okay. So next is Arshi, Present, sir. Mudita, Present, sir. Vineet, Present, sir. Karuna, Kanav, Lakshay, Jatin, Gaurang, Tushar,
Tanmay. Present, sir. Okay. Archit, Harshmeet, Aniket, Priyanshi, Nitish, Sarthak, Abhishek, Anjali Singh. Present, sir. Anjali Singh, please say present again. Present, sir. Okay, got that. Amisha. Present, sir. Next is Shivansh. Aditya. Tarush. Govind Vora. Tanya. Present, sir. Shashank. Akash. Present, sir. Akash. Present, sir. Pragya. Present, sir. Mayank. Anuj. Tushar Jaiswal. Ritika. Shraddha. Present, sir. Sir, Ritika, Present, sir. Okay, Ritika is present and Shraddha is present. Harshit. Present, sir. Tanish. Present, sir. Anushreya. Present, sir. Ansh. Present, sir. Mohit Agarwal. Shivangi. Ashish. Harshit. Pranav. Vipasha. सर बिपाशा का कनेक्शन प्रॉब्लम हो रही है शायद. हो गया सर, हो गया, अभी कनेक्ट हुआ है अभी. Piyush is present. Present, sir. Okay, Mayank Papar. Present, sir. Arpan. Mansi Jain. Vibhor. Present, sir. Priyansh. Present, sir. Vivek. Himanshu Rana. Virat. Present, sir. Virat is there? Okay, thank you. Yes, sir. Navya. Present, sir. मुस्कान. शिवेक रह गया. शिवेक मैंने बोला था आप ध्यान में नहीं हो गए, लगा दिए प्रेजेंट. मुस्कान. Present, sir. अक्षत. Present, sir. तरुण. Present, sir. अरुण. सौरभ. ऋतिक. ओके, कोई रह तो नहीं गया? किसी का अटेंडेंस ना लगी हो, नाम ना लिया हो मैंने? सर शिवेक. अरे हो गया यार शिवेक, बस कर. बोला तो नहीं था सर आपने. बोल दिया, कितनी बार बोलूं तेरे को? चलो ओके, ठीक है, ठीक. चलिए फिर म्यूट कर लीजिए, टाइम टू टाइम ऑन कर लीजिएगा अपने डाउट से लेकर के, या मुझे जब मैं फीडबैक डिमांड करूँ तब. ओके, थैंक यू. सो कल हमने ये डेफिनेशन कर ली थी अबाउट द एंटरप्रेन्योर, and that entrepreneur is a challenge who accepts the challenge and willing to work hard to organize a business firm from central to the distributive level to gain the maximum profits through his innovations. That's a single definition which we can achieve it from these three. And then we moved on with the characteristics of the entrepreneur. Are you able to see those slides? Anyone, Yes, please sir. respond. Okay, thank you. So characteristics of the entrepreneur are the calculated risk taker. ये हमने शायद कल कर लिया था आपकी क्लास में. Calculated risk taker, innovator, organized, creative, achievement motivated, technically competent, self-confident, socially responsible, optimistic, and equipped with the capability to drive. So these 10 points we had cleared yesterday. Yes, anyone please? Yes sir, हमने ये सब कल कर लिया था. Okay, and so we are continuing with the continuity with this.
that is blessed with mental stability. So blessed with mental stability is responding to blessed with mental stability or an aptitude. Aptitude is a component of a competence to do a certain kind of work at a certain level. So that is the, you can say, up to the mental aptitude or the mental capability of a person that is going to work it out. So aptitude is a component that of a competence to do a certain kind of a work at a certain level. Aptitude may be a physical or mental. Mental, the things how to do it, and the physical, how he does it. तो कौन किस तरह से काम करता है और किस तरीके से करना है, that both physically and mentally this can be carried it out. Aptitude is inborn potential to do certain kinds of work, whether developed or undeveloped. Aptitude जोन सा है किसी काम करने के तरीके को, वो human being के अंदर inborn है. Suppose if I'll give you अगर एक group of students को मैं एक task दूं, तो हर किसी को उस task को complete करने का तरीका दूसरा होगा. So somebody, कोई क्या, suppose we have to reach the ground floor. So कोई सीढ़ियाँ, कोई stairs को prefer करेगा, कोई lift को prefer करेगा, कोई सीधा रस्सी पकड़ के कूदने की कोशिश करेगा. So must be having the different ways as per the mental ability, as per the mental aptitude. The different people have different thinking to do out a single task. So that is the mental ability of a person. So ability is to develop knowledge, understand, learn, and acquired abilities or the skills or the aptitude. So that purpose, entrepreneur has to be a mental stable person, that he is able to do the things, carry out the things in a very well mannered and in a good way to complete those particular tasks. So that is the ability to having handling the mental ability, blessed with the mental ability. Next is human relation ability. Human relation ability is about the interpersonal or the group interaction between the group of employees or with each other. So this is, you can say, human relations refers to the interpersonal and the group interaction of the employees. In view of the entrepreneur का क्या view रहना चाहिए regarding the human relations? That from the perspective of that, he is trying to create a system. वो एक system create कर रहा है कि कौन किस level पे क्या चीज communicate कर सकता है, and trying to establish a communication channel that enable strong one-to-one and group employee relationships. यानी कि वो एक अपने एंटरप्रेन्योरशिप कम्युनिकेशन स्किल जो से ह्यूमन रिलेशंस हैं, वो किस तरह से सेटअप करा है कि वो इस तरह से सेटअप करा है कि उसका एक सिस्टम क्रिएट हो रहा है कि मैनेजर को एम्प्लॉयज जो है वो मैनेजर को रिस्पॉन्ड करेंगे, मैनेजर अपने सीनियर को रिस्पॉन्ड करेगा, सीनियर अपने बॉस को रिस्पॉन्ड करेगा. सो दिस इज हाउ अ रिलेशन इज बीइंग डेवलप अप between the employees or the group of the employees कि एक communication channel establish कर रहा है, एक hierarchy establish कर रहा है कि जिसके उनके आपस के relation का इतना strong हो जाए that they are able to share out the things in a good and healthy discussion can be taken place in them. So for the individual employee perspective, एक individual employee का perspective क्या होगा इस चीज को लेकर के, that human relations have the ability to interact in the healthy way with other people to build an effective relationship. अब suppose अब आप दोस्त हो, you are interacting with each other throughout the WhatsApp and all things, but you are in a good healthy relations कि आप एक अच्छे दोस्त बन चुके हो. बट अगर आप क्लास में नहीं आ रहे हो, आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, so that is not going to develop a good relation. अब आपके CR क्लास का बना रखा है, CR और आपके कोई जो बच्चा सीआर का दोस्त भी नहीं है, बट एक रिलेशनशिप तो है, उसके सेटअप की कोई प्रॉब्लम आ रही तो वो सीआर को कन्वे कर देगा. सीआर का रिलेशन उसके मेंटोर के साथ बनाया हुआ है, क्लास काउंसलर के साथ बनाया हुआ है, जो उसके साथ टीचर के साथ डिस्कस आउट कर सकता है. देन देयर इज अ रिलेशनशिप. टीचर जो उनसे एचओडी के साथ रिलेशनशिप में है, जो अपनी चीजें कम्युनिकेट कर सकता है. एचओडी अपने डायरेक्टर के साथ कम्युनिकेशन में, डायरेक्टर चेयरमैन के कम्युनिकेशन में. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ ह्यूमन रिलेशन जिसमें हम एक दूसरे को एक पर्सपेक्टिव से समझ पाते हैं. कम्युनिकेशन चैनल एस्टेब्लिश हो रखा है जिससे हम एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिलेशन सेटअप करके एक दूसरे की चीजें कन्वे कर सकते हैं और एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं. सो दैट इज द ह्यूमन रिलेशन. सो दैट इज द क्वालिटी विच हैज टू बी प्रेजेंट इन द एंटरप्रेन्योर. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू गाइस. Any Yes, reply? sir. Okay, thank you. Just a single reply. Some more students can reply to me if they are having any kind of a problem or they are understandable.
यस विनीत, कुछ बोलने लगे हो आप? नहीं सर, कुछ नहीं, माइक ऑन कर रखा था, मैंने कहा कुछ बोलोगे? गलती से हो गया है। ओके, गलती से नहीं, आप ऑन कर सकते हो माइक अपना अपना फीडबैक देने के लिए जब मैं आपसे पूछ ही रहा हूँ. ओके, ओके सर. थैंक यू. नेक्स्ट इज द कम्युनिकेशन एबिलिटी. Communication, without this, I think entrepreneur can't be an entrepreneur because he has to convince many people, he has to talk to many people, he has to talk to many delegates, he has to communicate the things to junior level fourth class employee also, even to their seniors also. So entrepreneur has to be good in the communication skills. The communication skills are the abilities when you use when giving or receiving different kind of information. जब आप दे रहे हो या कुछ ले रहे हो किसी तरह की भी information, that is the ability which is where the communication skills are to be required. So communicating is having giving up a new ideas or the feelings or even update your project. कि इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट्स की अपडेट भी दे सकते हैं, आपके आइडिया आपके दिमाग में क्या चल रहा है. Without communication you are not able to give your idea to the another person, you are not able to convey your feelings to the another person. So communication is required and is most important capability of an entrepreneur. Communication skills involves listening, speaking, observing, and empathy. So these all are the skills which are to be present up in the entrepreneur. Next is decision making. Also, this is being a cognitive process. This is a continuous process resulting in the selection of belief and the course of action among some possible alternative options. डिसीजन मेकिंग क्या है? एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक कंटिन्यूस सिलेक्शन ऑफ द प्रोसेस है कि क्या क्या चीज़ हम ऑल्टरनेट ऑप्शंस ले सकते हैं. दैट एट द where we are getting stuck, we have to choose out any kind of alternate options and we have to believe in ourselves that this is going to get the work done and we have to complete it by the anyhow. So we try to find out the many alternative ways, every possible ways to complete those tasks. So decision making is a process of identifying and choosing the alternative based well on the basis of values, preferences and the beliefs of the decision makers. डिसीजन मेकर एंटरप्रेन्योर किस बेसिस पे डिसीजन लेगा? या तो जो प्रोजेक्ट है उसकी वैल्यूज पे वो क्या टर्म्स रखती हैं, प्रेफरेंसेस उसकी प्रेफरेंस में वो आता है या नहीं आता, या उसकी बिलीफ है या नहीं है कि दैट दिस टास्क कैन बी गेट कंप्लीटेड. सो ऑन दीज थ्री बेसिस डिसीजन मेकर टेक्स द प्रोसेस कि किस तरह से उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना और क्या ऑल्टरनेटिव मेथड्स मुझे रखने हैं, वो इन बेसिस के ऊपर लिए जाएंगे. दैट इज द वैल्यूज, प्रेफरेंस एंड द बिलीफ्स ऑफ द डिसीजन मेकर. नेक्स्ट इज एवरी डिसीजन प्रोसेस produces a final choice. हर एक decision making process एक final choice लेकर के आता है that whether we are going to take any kind of action in this regard or not going to take any action. So this is how the decision making capability has to be there in the entrepreneur. Next point is business planning. अभी तक के तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं? डिसीजन मेकिंग, ब्लेस्ड विद मेंटल एबिलिटी, ह्यूमन राइट्स, कम्युनिकेशन एबिलिटी. Yes, sir. Okay. So business plan. Now, what is the business plan? Entrepreneur के दिमाग में क्या चीजें होनी चाहिए? Can I have some ideas from you guys? चलो अभी हटा दिया मैंने उसे. Yes, please, one by one. Entrepreneur किस तरह से सोचना चाहिए अपने business plan को लेकर के? Yes, guys. Vipasha, any point? Vipasha, are you there? Yes, sir. Yes, please बताइए. Entrepreneur को किस तरह से सोचना चाहिए उस चीज को लेकर के? सर किसके रिगार्डिंग मतलब? एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो अपना खुद का बिजनेस डेवलप करता है, कुछ इनोवेशन. Yes, sir. As per him, what is the business plan? मतलब वो किस तरह से उसकी थिंकिंग होनी चाहिए? Business plan is a kind of you can say characteristics of the entrepreneur. Sir, innovative, creative. Sir, risk taker. Innovative, creative is the or also the characteristics of the entrepreneur. But business plan का नजरिया उसका कैसा होना चाहिए? Sir, risk taker. Some all okay, risk taker. Yes.
Anyone else? सर Mudita? मतलब उसका भी ऐसा होना चाहिए कि ज्यादा कंपटीशन ना हो उसके अगेंस्ट। ज़्यादा कंपटीशन ना हो, ओके। उसे चीज़ें फाइंड आउट करनी चाहिए किस लोकेशन एरिया पे उसे सेटअप करना चाहिए कि जहाँ पे उसे कॉम्पिटिटर उसके ना अवेलेबल हो, ओके। यस सर। शिवेक, एनी पॉइंट? Don't worry, this is a healthy discussion is going on, nothing else than that. Vibhor? At least say no points, sir. Otherwise, class Some market analysis. market analysis, okay. फाइनेंशियल प्लानिंग काउंट करेंगे सर इसमें? बिल्कुल काउंट करेंगे, क्यों नहीं काउंट करेंगे। बिजनेस अगर चलाना है तो हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे तो देखना ही पड़ेगा ना, कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट ये करना तो है। मतलब वो ऑब्वियस है ना, इसलिए मेरे को ठीक बट है। ऑब्वियस इट फाइनेंशियल हैज टू टेक इट। शिवेक एंड विभोर, आर यू देयर? सर कस्टमर नीड। Customer need, okay, we can consider it up as per if we are working on the product. Shivek and Vibhor, attendance cut, okay, thank you. सर मार्केट प्लेस। हेलो हाँ, हो गया जिंदा, जल्दी जिंदा हो गया। सर, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। क्या बात कर रहा है, बाकी सबको सुन। नहीं सर, ब्रेक नहीं मेरे हो में रही है, हो रही है। बिल्कुल भी नहीं हो रही। आई नो मेरी आवाज मेरा कब ब्रेक होगी। मैंने इस टाइम पे पर्सनल कंप्यूटर अपने पर्सनल नेटवर्क से कनेक्ट करेगा, वॉइस अभी ब्रेक अभी भी हो रही है सर। अपना सर अब नेटवर्क फिर चेक कराओ। यहाँ पे नेटवर्क इशू होगा ना, यहाँ पे बारिश हो रही है। हमारे नेटवर्क खराब होगा भाई, इसलिए ब्रेक हो रही है। हाँ तो हमारा ही है, वही तो सर, वही तो कह दोनों रहा हूँ। एक साथ ही ये हो गया। और क्या, हाँ, ये एक सेम मेरे घर जगह के रहते हैं, पास। एक ही थोड़ा साथ पास एक। पास ही है ना भाई। ये छत पे रहते हैं, हाँ ओके हाँ सर, एक छत पे रहता है, शिव एक छत पे रहता है, नीचे घर में रहता है। ओके, चलिए ठीक है। दिस इज जस्ट टू अवेक यू ऑल पीपल कि हाँ आप जिंदा हो और सुन रहे हो मुझे अच्छे से, ओके। सो नाउ बिजनेस नहीं प्लान। सर, सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। नहीं देखो, बोरिंग ना हो जाए बिकॉज थियोरेटिकल सब्जेक्ट है एंड आई नीड टू कीप यू गाइस एनरोल्ड विद माय सब्जेक्ट एंड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस इफ आई विल टेक सम काइंड ऑफ अ सजेशन फ्रॉम यू आल्सो, ओके। So next is the business plan. Okay, sir. So business plan is entrepreneur की सोच क्या होनी चाहिए, उसे क्या क्या चीजें वहाँ पे चाहिए, how he have to be fully planned कि मुझे अपने बिजनेस को यहाँ से लेके वहाँ तक जाना है। सपोज आज वो अपने घर पे बैठा है और उसने एक शॉप ओपन करनी है और उसे वो शॉप के सपने भी में ये भी सोचना है कि मुझे क्या क्या मटेरियल रखना है, कहाँ से मटेरियल उठाना है और इस शॉप को कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है और मुझे इसके आगे ब्रांचेस और फ्रेंचाइजीज खोलनी है नहीं खोलनी है। he has to be thinkable in that particular way। उसे अपना सक्सेस रेट, फाइनल सक्सेस रेट तक कैसे पहुंचना है, क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं, उसे वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। उसे प्राइमरी गेस वर्क, प्राइमरी की किस तरह से उसे उन चीज़ों को कैरी आउट करना है, गेस वर्क लेना है कि अगर मैं ये स्टेप्स लूंगा तो क्या होगा, ये स्टेप्स लूंगा तो क्या होगा, ये स्टेप्स लूंगा तो क्या रिजल्ट्स प्रोड्यूस होंगे। एंड ही हैज टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक और होपफुल होना चाहिए कि नहीं ये चीज़ें करने से आई बिलीव दैट यहाँ ये रिजल्ट्स तक मैं पहुंच जाऊंगा। ही हैज टू बी वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक फॉर दैट। तो उसका प्लान भी उसी के अकॉर्डिंगली होना चाहिए कि उसे आइडेंटिफाई करके रखना है कि वो चीज़ें जो अकम्प्लिश करना चाहता है वो किस तरीके से अकम्प्लिश होंगी, किस वे से होंगी और क्या क्या चीजें उसे इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी कि वो उस चीजों को अचीव कर सके। सो बिजनेस प्लान इज दैट एज पर द एंटरप्रेन्योर्स थिंकिंग that ventures entrepreneurs that are very thoughtful planned, they have to be very thoughtful, planning is to be there, more likely to succeed in that। अगर उसे सक्सेस पानी है तो it has to be very thoughtful planned। उसे बहुत पूरा लेआउट लेकर के रेडी करके रखना होगा कि किस तरीके से वो अपने स्टेप्स कैरी आउट करेगा सो दैट ही कैन अचीव दो सक्सेस। that is based on, those are based on primarily on guesswork and the hope। primarily on guesswork यानी कि he has to take some kind of a guesswork कि अगर मैं ये steps लेता हूँ, जैसे कि if I'll give you an example, वास्तव मूवी सबने देखी है? Yes, respond please। कौन सी मूवी? वास्तव ऑफ संजय दत्त। यस सर देख। जब उसने ठेला लगाना था पाव भाजी का या कुछ लगाना था, so how he explained to his father, उसका गेस वर्क था ना कि वहां पे एक आदमी पहले से पाव भाजी की रेडी लगाता है, वो वहां पे कितना कमा लेता है
बट ही वॉज हैविंग दैट कि मैं नासिक से डायरेक्ट पाव उठाऊंगा, यहाँ पे खुद मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, यहाँ पे खड़ा हूँगा एंड ही विल गेट दोज। इतना गेस वक्त था कि मैं दिन का इतना निकाल लूंगा, वो 50 की बेचता है, 100 पीस बेचता है, मैं 40 की बेचूंगा, 200 पीस बेचूंगा, आई वर्क आउट ऑन दैट। तो इस तरह से उसने अपना गेस वर्क दिया था। सो दैट इज द प्राइमरी ऑन द गेस वर्क। वो चीजें गेस वर्क से पहले शुरू होती हैं और होप करता है कि दैट विल वर्क इट आउट, ऑन दैट बेसिस ही हैज टू प्लान आउट ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि इनिशियली तो हम सबके पास एक आइडिया ही होता है कुछ करने का, उससे ज्यादा तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता। When you go to your father that I want to go for this particular work, तो आप बिजनेस खोलना चाहते हो, फादर के सामने पुट अप रखते हो कि ये काम मैं करना चाहता हूँ, इस एरिया में ये चीज अवेलेबल नहीं है, इस एरिया में ये चीज हम कर सकते हैं, एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू डू इट। मैं यहाँ से मटेरियल उठाऊंगा, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, ये मैं सप्लायर्स में बात करूंगा, किस तरह से उनसे डील आउट करूंगा, क्या क्या मैं उन्हें ऑप्शंस दूंगा। सो दिस ऑल आर द गेस वर्क्स। इम्प्लीमेंटेशंस तो ऑन ग्राउंड होंगी नहीं होंगी, किस तरह से डील आउट होंगी, बट पहले तो हमारे सारे गेस वर्क्स होते हैं और उस पे हम होप करते हैं कि नहीं ये सारी चीजें ऐसे ही सारी चीजें कैपिटल ऐसी चीजें वर्क करती चली जाएंगी। सो दिस इज अबाउट द प्लानिंग प्रोसेस, हाउ द एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई एग्जैक्टली व्हाट्स नीड्स टू बी अकम्प्लिश, क्या क्या स्टेप्स मुझे अकम्प्लिश करते हुए चलते जाना है टू बिल्ड अ वेंचर। कि हर इसका एक और एग्जांपल देते हैं, बॉयज डू द एक्सरसाइज, जिमिंग करते हैं, बॉडी बिल्डअप करने का उनके स्टेप्स होते हैं, या किसी ने वेट लूज करना है उनके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो एवरी वीक दे डू आउट द एक्सरसाइज, दे डू आउट द हार्ड वर्क एंड दे डू द डाइटिंग ऑल्सो। तो हर वीक वो अपना टारगेट रखते हैं कि इस वीक अगर मेरा वेट 50 है तो नेक्स्ट वीक मुझे 48 चाहिए कंप्लीशन तक, नेक्स्ट वीक तक। सो देयर इज अ टारगेट बिटवीन दैट, एंड वो उस टारगेट को कंप्लीश करना है कि हाँ मुझे लास्ट में मुझे वेट मेरा 40 चाहिए, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए उसे वीकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपनी चीजें कि जो चीज उसे कवर आउट करनी है। तो वो उस तरह से एंटरप्रेन्योर का टारगेट भी वही होना चाहिए कि उसे छोटे छोटे स्टेप्स को अकम्प्लिश करते हुए जाना है, सो दैट ही कैन बिल्ड हिज बिजनेस इन अ बिग venture. So that what's the human and the financial resources are also required to implement the plan. अब हमें कुछ लेबर, कुछ ह्यूमन मैन पावर भी चाहिए होगी एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे, तो उन्हें भी इस प्लान के अकॉर्डिंगली ही इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि कहाँ पे मुझे कितना पैसा लगाना है, किस टाइम पे मुझे कितने पैसे किसको हैंड ओवर करने हैं, किस टाइम पे क्या रिसोर्सेज मुझे चाहिए होंगे और किस किस से मुझे पैसा उठाना है। सो एट व्हाट टाइम वी हैव टू गेन द रिसोर्सेज। तो इन सभी चीजों को प्लान, बिजनेस प्लान उसके दिमाग में, एंटरप्रेन्योर के दिमाग में होना चाहिए। He has to be well planned with that particular work. Is that clear with the business plan? Yes, sir. Yes, sir. That's good. Next is a venture capitalist. A venture capitalist is a private equity investor. अब क्या हुआ, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होगा, अब एंटरप्रेन्योर है, खाली अपनी इंडस्ट्री से काम नहीं करेगा वो। अब उसने कुछ इनोवेशन करी थी, उसकी इंडस्ट्री सेटअप हुई, उसने डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंचाइजेस में तो उसने डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम करना। वो क्या करता है, पहले अपनी इंडस्ट्री सेटअप करता है, अपनी इंडस्ट्री सेटअप करते ही अपनी ग्रोथ देखता है, अपनी ग्रोथ के साथ साथ वो क्या करता है कि और अपनी फ्रेंचाइजीज ओपन करता है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे काम करता है, वहां से उसे कैपिटल ग्रोथ होती है। व्हेन ही अर्न्स द प्रॉपर्ली मनी, जब उसका टारगेट अचीव हो जाता है, देन व्हाट, देन ही हैज टू डू समथिंग मोर, देन ही लुक आउट फॉर द अदर स्मॉल स्टार्टअप्स जिन्होंने अभी स्टार्टअप किया, कुछ न्यू आइडियाज लेकर के हैं, देन ही कीप्स ऑन इन्वेस्टिंग इन दैट। वो क्या करता है, अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए दूसरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करता रहता है, दूसरे स्टार्टअप वेंचर्स में इन्वेस्ट करता है, उन्हें फंड्स देता है और उनके साथ इक्विटी इन्वेस्टर यानी कि उनके उनके ड्रीम्स में, उनके स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है, लेकिन कंपनीज के कुछ शेयर मार्केट्स, शेयर स्टॉक्स उनसे ले लेता है, जिससे कि वो कंपनी ग्रो होंगी तो उनका शेयर स्टॉक भी बढ़ेगा और उसकी भी ग्रोथ होगी, एंड दैट मनी इज यूटिलाइज टू इन्वेस्ट मोर इन द सम मोर स्टार्टअप्स। यानी कि उस पैसे को कंटिन्यूटी में आगे ग्रोथ में लेकर के कंटिन्यूटी में रखने के लिए दैट हैज टू बी अ वेंचर कैपिटलिस्ट। तो वो दूसरे इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट के लिए भी रेडी होता है और एक्सपैंड करता है, उनकी ग्रोथ भी और अपनी ग्रोथ भी। सो इज दैट क्लियर, द वेंचर कैपिटलिस्ट? Yes, sir. Okay, next is visionary.
Now, this is the most important part, which is nowadays it's mostly required. Vision. Everyone talks about the industry के boss का vision क्या है. No one talks about the vision of the industry. Boss का vision क्या है? Boss का vision is necessary because industry boss बहुत तरह के आपको मिलेंगे. When you will move out in the industry, बहुत तरह के आपको bosses मिलेंगे. Some of thinking are कि नहीं मुझे मैन पावर इंडस्ट्री में चाहिए. जैसे अब इस टाइम पे भी अगर हम बात करें, some industries are giving work from home and some industries are saying कि आपको इंडस्ट्री में आके ही काम करना है, यहीं पे आके काम करना है. So this is a kind of a vision कि वो कितना ट्रस्ट करता है और कितना ट्रस्ट नहीं करता है और किस लेवल तक उसका विजन है कि मुझे इन चीज़ों को कहाँ तक पहुँचाना है, कहाँ तक लेकर के जाना है. That is about the vision that industry boss has to be taken up in care. It is being able to have a picture in your mind exactly the results you intend to produce. कि उस बॉस में या एंटरप्रेन्योर में एक पिक्चर सेटअप होनी चाहिए कि मुझे किस तरह की इंडस्ट्री सेटअप करनी है, क्या क्या मेरी इंडस्ट्री में होना चाहिए और किस तरह की चीजें होनी चाहिए और क्या क्या मेरी इंडस्ट्री करेगी. इट हैज टू बी क्लियर फिगर इन हिज माइंड कि हाँ ये चीज मैं बनाना चाहता हूँ. So visionary entrepreneur is able to see exactly what his or her business is going to look like in every detail when it is finished. Finished means it's a kind of a business investment. जब आपका business किसी दूसरी companies में investment, दूसरे startups में investment करना शुरू कर देगा, so that is where the business is the every detail is finished. This is called the visionary. Next point is entrepreneur makes significant differences. Entrepreneur क्या करता है? Significant differences लाता है. Now let's discuss this point. Let's everyone keep your points please. Mic on करके बताइए अपना एक एक करके that how entrepreneur makes the significant differences. सर सोसाइटी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. Yes, Like, definitely. सोसाइटी के लिए वो कितना काम कर सकते हैं, सोसाइटी में क्या क्या डिफरेंसेस ला सकते हैं वो, डेफिनेटली. Yes, anyone? No one is there? Hello? ये देखो. मैं किससे कनेक्ट करूं, क्या करूं?